Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying about theory of supply for class 10 ICSC for their economic subject. So this is chapter 4 that we will study. Before this we have already done the chapter 1 factors of production, chapter 2 elementary theory of demand and chapter 3 elasticity of demand. Now we are moving towards a totally different concept, that is supply. Yes, the plotting of the curves is the same as we have studied in elementary theory of demand, but here you will study the just opposite concept that you have understood in the part of supply. So basically we should first understand that what is the meaning of supply. So in terms of economics, supply refers to the schedule of the quantities of commodity that the producers are willing and able to offer for sale at all possible prices during the given period of time. Ceteris paribus means other factors again remaining constant. Now when you are talking about supply, the first thing you should understand is that you are supposed to forget that you are a consumer. You are supposed to remember that who are you are a producer. एंड अब जितना भी ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ प्रोड्यूसर यू विल अंडरस्टैंड. ठीक, अभी एक बेसिक सी चीज़ हम आपको इसमें समझा देते हैं. द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हेन यू हैव स्टडीड अबाउट डिमांड में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्राइस विल बी हाई, द डिमांड विल बी लो. बट व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग सप्लाई, the price will be high and the supply will also be high. This is a basic concept that you are supposed to understand. that यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है. डायरेक्ट रिलेशन होता है. सप्लाई अगर हम जनरल भी समझे, हम मीनिंग नहीं भी समझे, तो भी हमें ये पता है कि जितना भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ रहा है उसको हम सप्लाई कहते हैं. ठीक, when we studied about demand means what we ask for and supply means what the sellers are selling. तो price is high, the supply is also high, and when you talk about the opposite, price is low, the supply is also low. Other factors can be the goals of the firm, the profit maximization, any other thing. All those remain same, but the price and the supply goes up, that is a direct relation, goes down, that is again the direct relation. जब हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन पढ़ा था, हमने समझा था कि वो इन्वर्स रिलेशन होता है. जब हम प्राइस और सप्लाई का रिलेशन समझेंगे, हम समझेंगे कि वो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है. ओके, हेंस when you are understanding economics, the supply refers to the schedule of different commodity that the producers are willing to and able to offer for sale. Means whatever they are selling at the market, in the market at all possible prices during a specific period of time. Other factors remaining same is known as supply. So any of these definitions you can take. This is also given in your book also. Now a few features of supply just to have a better understanding of the concept. First is the desired quantity. Now supply refers to who are you are the producer. Now so whatever quantity you are willing and you are ready to sell rather than what you actually succeed in selling. जो एक्चुअल सेल है हम वहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वॉट एवर यू आर डिज़ायरिंग और विलिंग टू सेल इज़ नोन एट सप्लाई. Related to price, it will always be in terms of a specific price. That means price changes. ठीक, it is a flow concept. It is always measured over a particular length of time. You can understand as per week, per day, per month or per annum. Okay, so it is a flow concept. And then what does supply and quantity supplied means? जैसे हमने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था, वैसे ही सप्लाई एंड quantity supplied we will understand. Supply refers to the entire relationship showing or a schedule that is showing various quantities that a producer is willing to sell at all potential market prices. Quantity supplied refers to the unique amount of commodity that sellers are willing to offer at one particular price. इसको समझो कि अगर आपका सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है तो we'll understand this with the help of a schedule only. ठीक, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं, then we are talking about this is quantity supplied. And when you are talking about all the possible prices पर जब आप all the amount of quantity sell कर रहे हो, that is known as supply and hence it is known as supply schedule.
ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड हमने पढ़ लिया कि अगर आप एक शेड्यूल की बात कर रहे हो तो वो सप्लाई में आता है, और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल हो रही है, दैट इज़ नोन एज क्वांटिटी सप्लाइड. ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स सप्लाइड एट वेरियस ऑल्टरनेटिव प्राइजेस, एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट इज सप्लाइड एट अ इंडिविजुअल प्राइस और अ स्पेसिफिक प्राइस. ठीक, तो दिस इज गिवन एज अ सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑरेंजेस. अब इसको दोबारा से समझो. यू कैन सी दैट द प्राइस इज 9, 10, 8 and 7. सो द प्राइस इज फॉलिंग एंड यू विल सी दैट द क्वांटिटी सप्लाइड number of oranges 470, 400, 320 and 200. दिस इज ऑल्सो फॉलिंग. ये भी क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है. तो जैसे जैसे आपकी जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल हो रही है. यू आर सपोज टू रिमेंबर कि जब भी आप सप्लाइड चैप्टर को पढ़ोगे, यू विल नॉट यूज़ द टर्म डिमांड, क्योंकि हर बार ऐसे होता है डिमांडेड. व्हेन आई वाज मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट आई वाज सर्चिंग फॉर थिंग्स अगेन, आई वाज आल्सो राइटिंग इट क्वांटिटी डिमांडेड. बट येस, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती हैं कि एवरीवेयर यू विल यूज़ ओनली क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है दैट व्हेन द प्राइस इज ₹10 वी कैन कंसिडर the specific quantity supplied is 470 oranges. When the price drops to ₹9, the quantity supplied falls specifically to 400 oranges. So ये एक चीज़ें दी हुई हैं कि अगर प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी भी फॉल होगी. ठीक, अब वी विल टॉक अबाउट सप्लाई एंड स्टॉक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू, तो आपको इनका बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सप्लाई, वट एवर इज अ टोटल पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट इज एक्टिवली ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट. मैंने प्रोड्यूस तो बहुत सारा सामान किया है. वट एवर इज योर प्रोडक्शन, दिस इज योर स्टॉक. ठीक, द टोटल फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर और द सेलर इज नोन एज स्टॉक. जो भी वो मार्केट में ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए, जो भी वो मार्केट में सेंड कर रहा है बेचने के लिए, इज नोन एज सप्लाई. सो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर लेते हैं, एंड इट इज़ स्टॉक इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट जिसको हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर लेते हैं, किसी एक डे पर, दैट वी विल अंडरस्टैंड कि 31st of January को द स्टॉक वॉज दिस मच. एंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेल और सप्लाई, तो सप्लाई इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट जिसको हम पर डे पर वीक के हिसाब से कंसिडर करते हैं. ठीक, देन रिलेशन, सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्टॉक एक्सेप्ट फॉर हाई पेरिशेबल गुड्स over extended periods where old stocks clears fully, and stock is always greater than or equal to supply. Then the supply always depends upon, highly dependent on current market price, and the stock is primarily dependent upon past production. जितना past production है उसके ऊपर वो निर्भर करता है. The cost also, the price also. Then दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन. ओके, तो इसी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज एक फार्मर है जो हु प्रोड्यूसेस 400 क्विंटल्स, तो उसने जो टोटल प्रोडक्शन किया वो इतना किया 400 क्विंटल्स का. ठीक, तो ये 400 क्विंटल्स बन गया उसका स्टॉक. जब वो उसमें से जो उस टाइम पर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है दैट इज़ ₹800 पर क्विंटल, तो उस टाइम पर जो फार्मर है वो 200 क्विंटल्स को सेल कर रहा है मार्केट में. दिस विल बी नोन एज सप्लाई. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज़ द टाइप्स ऑफ सप्लाई. अगेन इसको बहुत ही, ये भी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ समझने पर्पस के लिए, मोर दैन दैट इज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन. सबसे पहले इज मार्केट पीरियड सप्लाई, दैट इज़ इंस्टेंट सप्लाई, रेफर्स टू वेरी शॉर्ट सिचुएशन. जहाँ पर अब ये जो आपको टाइप्स ऑफ सप्लाई दिए हैं, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड सप्लाई, यहाँ पर बोला गया कि इस टाइम पर अगर प्राइस चेंज होता है तो विल इट अफेक्ट द सप्लाई और नॉट. तो शॉर्ट पीरियड में देयर विल बी नो चेंजेस. ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये बहुत ही वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वेयर द मार्केट पीरियड इज़ टू ब्रीफ, टू स्मॉल, टू ब्रीफ, जहाँ पर major changes in the total supply is not possible.
The supply is fixed to the existing market inventory and cannot be increased even if the market price spikes significantly. Suppose कोई भी सामान है वो 10 रुपये का है, अब हमने प्रोड्यूस कर लिया, हमें पता चला कि जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये हो गया. आई विल ट्राई टू इंक्रीज द सप्लाई बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तभी तो आई विल इंक्रीज द सप्लाई, राइट. दैट इज़ वाई इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन. बट मार्केट पीरियड में जब ऑलरेडी माई गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, उस टाइम पर जो भी मेरे पास है, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है, हम उस पर सेल कर सकते हैं. हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते. हेंस इट इज़ नोन एज मार्केट पीरियड सप्लाई. दैट इज़ द इंस्टेंट सप्लाई दैट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. Okay, then next is short period supply. Refers to the time frame where the fixed capital assets like factories, machinery cannot be changed, but the production output can be altered to an extent by modifying the variable factors. Short period supply कौन सा supply होता है? ये वो time period है जिस टाइम पर हम fixed factors को change नहीं कर सकते. Suppose आपने कोई भी सामान को produce करना है, ठीक, तो शॉर्ट पीरियड कह सकते हो कि विद इन अ ईयर, जब आप सडनली कोई फैक्ट्री नहीं बना सकते, सडनली आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते मशीनरीज में इतना ज़्यादा, तो उस टाइम पर यू कैन ऐड अप मोर ऑफ लेबर, एक्स्ट्रा लेबर आवर्स लगा सकते हो, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगा सकते हो, ओके, या लेबर इनपुट्स को, मतलब मोर ऑफ लेबर यू कैन ऐड अप इनटू देम. तो ये आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड. बट फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे कि लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, मशीनरी हो गई, उसको आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते. हेंस इट इज़ नोन एज शॉर्ट पीरियड सप्लाई. देन इज़ अ लॉन्ग पीरियड सप्लाई, जो एक नॉर्मल सप्लाई होता है. तो इट रेफर्स टू द एक्सटेंडेड पीरियड, मे बी बियॉन्ड 1 ईयर, जहाँ पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इट कैन बी फिक्स्ड फैक्टर्स ऑल्सो एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑल्सो. फिक्स फैक्टर जैसे कि लैंड, मशीनरी, वेरिएबल फैक्टर जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, तो उन दोनों के लिए ही आपके पास इनफ टाइम है कि आप उसको बढ़ा सकते हो. अगर आपका जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो गई, न्यू प्लांट्स हो गए, ऑब्सोलीट मशीनरी को रिप्लेस करना हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लाने हो गए, तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो इन द लॉन्ग पीरियड. ओके, दैट इज़ नोन एज द लॉन्ग पीरियड सप्लाई. Moving towards the next concept, that is individual and market supply. When you are talking about these two types of supply, the सबसे पहला concept इसमें आता है the unique quantity of the individual single firm or the producer who is willing and ready to produce and offer for sale at a specific period during the defined टाइम फ्रेमवर्क. मतलब इंडिविजुअल सप्लाई जैसे हमने उसमें पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था, हेयर ऑल्सो वहाँ पर इट वाज 1 कंज्यूमर और 1 हाउस होल्ड. यहाँ पर इट इज़ 1 सिंगल प्रोड्यूसर और 1 सिंगल फर्म. कोई एक फर्म है, कोई एक प्रोड्यूसर है जो सामान प्रोड्यूस कर रही है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो सप्लाई है दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट सप्लाई, तो इट रेफर्स टू द cumulative aggregate quantities of all individual firms operating in that specific market. Suppose करो कि there are markets given जैसे A plus B plus C, ठीक, तो ये हो जाती है पूरी आपकी एक मार्केट, जहाँ एक ये A एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर है, बी एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर है एंड सी एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर है. ये हुआ इंडिविजुअल 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ठीक. तो दिस इज़ इंडिविजुअल सप्लाई दैट इज़ गिवन बाय फर्म ए. एंड जब आप इन तीनों को काउंट करते हो तो दैट इज़ नोन एज द मार्केट सप्लाई दैट इज़ गिवन बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट. तो मार्केट सप्लाई दैट इज़ गिवन बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म्स ऑपरेटिंग इन दैट मार्केट who are willing to offer for sale at a particular price at a specific period of time. तो ये पर्टिकुलर प्राइस एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हैज़ टू बी रिटन. ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा हुआ है दैट इफ़ देर आर एग्जैक्टली 3 फर्म्स, 3 फर्म्स हैं A, B and C, and they are producing sugar in a localized market at a price of rupees 30 per kg. Firm A supplies 200 quintals, firm B 300 quintals and firm C 250 quintals per month.
then all of these will be 750 quintals per month. So that is the 750 is the market supply. Okay, then again two more concepts that we will study is joint supply. अच्छा, अब हम इसको अगर एक बार इसकी प्लॉटिंग भी आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि कोई एक स्पेसिफिक प्राइस है, तो इस पे सपोज करो कि अच्छा वी स्टडीड सम शेड्यूल ऑल्सो हेयर ना, आई विल एक्सप्लेन यू विद दैट. यस, देखो तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सच शेड्यूल, तो हमने इसमें क्या समझा कि ये आपका एक्स वाई ज़ीरो, ठीक, एंड वी आर डूइंग द प्लॉटिंग ऑफ इट. तो इसमें यहाँ पर बोला गया है दैट दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज 7, 8, 9 एंड 10, दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज 200, 300, 400 एंड 500. तो 200, 300, 400 एंड 500 वी आर जस्ट, तो 470 पर व्हेन द पॉइंट वाज 10 इट वाज 470, तो हम इसको समवेयर नियर बाय यहाँ पर एड अप कर सकते हैं. 10 इज एंड 470 जो हम 500 के आसपास है, ठीक. 9 एंड 400, तो दिस इज 9 एंड दिस इज 400, ठीक. Then this is 8 and this is 320, so this can be 8 and this can be 320 or 300, and this is 7 and this is 200, this is 7 and this is 200. या हमेशा छोटे से शुरू करते हैं, 7, 8, 9 and 10. तो क्या समझ में आ रहा है, जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो कर्व बन के जा रहा है ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन के जा रही है, हेंस इट इज़ नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, दो तरीके के रिलेशनशिप क्वेश्चंस में आ सकते हैं. आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप. जो सबसे पहला वर्ड दैट यू विल यूज इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. पॉजिटिव आप उसकी जगह पर यूज कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट हैविंग द आंसर डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट अदरवाइज द रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. अब रीज़न इसका क्या होता है, अब सपोज करो कि मेरे पास एक मैच बॉक्स है जो ₹10 का है, एक क्लॉथ पीस है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है, सपोज करो टी शर्ट है या कुछ भी है, वो ₹100 का है, ठीक. एक चीज़ ₹10 की है, मुझे एज अ प्रोड्यूसर इसमें कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ₹2, क्योंकि कॉस्ट भी है. एक ये है क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ है, सपोज करो शर्ट है, ये क्या है, मैच बॉक्स है, MATCH, ठीक. क्लॉथ में मुझे नॉट ₹2, यू कैन से ₹10 या मे बी ₹10 मोर, ₹20 मुझे एज प्रॉफिट मिल जाएगा. मैं किस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी, ऑब्वियसली जिसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है. हेंस सप्लाई टेल्स यू कि आप हमेशा एज अ प्रोड्यूसर वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे जिसमें आपको प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलेगा. दिस इज़ व्हाट इज़ टोल्ड एज द सप्लाई शेड्यूल और द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कि हायर द प्राइस हायर इज़ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. वाई? बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट्स. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है, नाउ moving towards the next part of this, that is joint and composite supply. अब joint supply, when two or more outputs are produced together from a single source of production, that is known as joint supply. Suppose an increase in the production of one product automatically yields to corresponding rise in the supply of joint products. जैसे sheep farming में yields, mutton, वूल, स्किन एंड फर, ये सारी चीज़ें एक साथ उसमें से आ जाती हैं. वीट कल्टिवेशन में यू कैन टुगेदर यू कैन ब्रिंग आउट वीट, ग्रेन, स्ट्रॉ. क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग में साइमल्टेनियसली व्हाट कैन कम टू यू इज़ पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन.
ठीक, तो दिस इज़ नोन एज जॉइंट सप्लाई, कि आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हो. देन नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, वेयर द टोटल commodity or service that can be sourced from multiple independent production processes or origins. Means electricity generation can be from thermal power, hydro plants, nuclear fission, solar और wind arrays. different sources हैं जहाँ से आप इसको bring out कर सकते हो, hence it is known as composite supply. illumination of a room can be supplied, और ये अगर you have to illuminate your room, ठीक, through lightings and all, तो how it can be done? through candles, oil lamps, gas lighting or electricity bulbs. So these are known as the composite supply. Okay, next we will move towards the determinants of supply. very very important topic, you can mention a star there. ये आपको concept समझाता है कि actual में जो रिलेशन है प्राइस और सप्लाई का वो ऐसा है तो क्यों है. ठीक है, जब वी वर अंडरस्टैंडिंग ना अभी कि अदर थिंग्स वर रिमेनिंग सेम, तो दीज आर द अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू विल स्टडी. अब सबसे पहले समझो कि प्राइस और ऑफ द कमोडिटी, जब भी सप्लाई पढ़ोगे तो डिमांड के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना. रिलेट कर सकते हो बट कन्फ्यूज मत होना. ठीक, द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट अफेक्ट द सप्लाई. अब कहा जा रहा है सेट्रिस पेरिबस. सेट्रिस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स, अदर factors remaining same, higher market price provides greater profit motivation, prompting producers to offer more. There is a direct relationship between the price and the supply. Why is it so? Why there is direct relationship between price and supply? Because higher the price, higher will be more will be the producer motivated to supply the commodity. Why? Because of higher profit margins. Then is the price of other factors. other factors में other commodities. ठीक है, if prices of alternative items rise, producers will shift resources away from the current product and they will produce more of lucrative items. अब एग्जाम्पल समझो, सपोज करो कि सब्सटीट्यूट्स टी एंड कॉफ़ी हैं, समझाने के लिए हैं बस ये. ठीक, अभी एज अ प्रोड्यूसर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अदर जो अभी तक पढ़ा था. आप कौन हो? आप प्रोड्यूसर हो. मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने जो सामान प्रोड्यूस किया दैट इज़ टी, दैट इज़ ऑफ ₹20. अब मुझे पता चला कॉफ़ी का मार्केट प्राइस जो है वो 200 रुपये है. वेयर विल आई गो? आई विल डेफिनेटली प्रोड्यूस कॉफ़ी. ठीक, तो करंट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, हम जो प्राइजेज़ हैं वो एज अ प्रोड्यूसर, जब मुझे पता चल रहा है कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ राइजिंग, ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो आई विल शिफ्ट माई प्रोडक्शन फ्रॉम टी एंड आई विल मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कैबेज spikes and the farmers will divert land from peas to cabbage, reducing the supply of peas. Why? Because they will be getting more of the like you can understand कि बहुत ज़्यादा उनको वो मिलेगा, उसमें प्रॉफिट मिलेगा इन दिस. ठीक है, नेक्स्ट इज द गोल्स ऑफ द फर्म. इफ़ द फर्म एम्स मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम, उनका अगर फर्म का जो एम है वो सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा करना है या मार्केट शेयर ज़्यादा करना है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सप्लाई लार्ज क्वांटिटी इवन एट द लोअर प्राइस, बिकॉज वहाँ पर द गोल्स ऑफ द फर्म ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई. यहाँ पर द क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. तो अगर गोल्स ऑफ द फर्म में सबसे पहला जो गोल है या फर्म का दैट इज़ मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम या मार्केट शेयर को एक्सपैंड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरा मार्केट में बिके, तो भले ही प्राइस कम हो स्टिल आई एम गोइंग टू सेल इट. एंड कंपेयर टू अ फर्म दैट इज सोली फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग यूनिट्स पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, देन प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब इफ़ द प्रोडक्शन इनपुट्स, सपोज वेजेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, रेंट है, एनर्जी कॉस्ट है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइजेस. अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन? प्रॉफिट विल बी लेसर,
supply will be lesser. तो squeezing the profit margins, consequently the supply will fall. I cannot increase the price by myself. Suddenly मैं MRP नहीं change कर सकता because obviously it will affect the supply of my product. अगर suddenly हम price, अगर profit ज़्यादा कम हो रहा है मुझे, तो मैं अगर ये समझूँ कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई विल फॉल. फिर से इस चीज़ को समझो. सपोज करो कि मेरे, इफ़ आई एम द प्रोड्यूसर, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है. अब यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर्स. एलपीजी के रेट अभी सडनली बहुत हाई हो गए हैं. ठीक, इट्स नॉट अवेलेबल, जो हैं वो बहुत हाई रेट पर हैं. तो क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है. कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट इज़ लेसर. ठीक, या तो वो कम प्रॉफिट पर, ऑब्वियसली कम प्रॉफिट है तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई को लेस करेगा, या तो इसके जगह पर वो प्राइजेस को बढ़ाएगा एंड देन वो सप्लाई करेगा. तो हेयर कॉन्वर्सली व्हेन लोअर इनपुट प्राइसेस आर देयर, तो जो सप्लाई है वो कम हो जाता है. अगर इसी में ही, अगर हम इसी का ऑपोजिट देखें, अगर कॉस्ट कम हो जा रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई विल ऑल्सो बी मोर. ठीक, देन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. इन्वेंशंस एंड एडवांस्ड इंजीनियरिंग improve productivity, allowing for cheaper, faster manufacturing. If there is reduction in the production cost, it may cause increase in the supply. क्या बोला गया है, that inventions and अगर अच्छी इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी है, इट विल इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, इट विल अलाउ फॉर चीपर एंड फास्टर मैन्युफैक्चरिंग. आप जल्दी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो दिस विल लीड टू रिडक्शन इन द कॉस्ट. ठीक, एंड इट विल इंक्रीज द सप्लाई. जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स ड्रास्टिकली बूस्टेड ऑटोमोबाइल असेंबली सप्लाई. कभी इसका कोई वीडियो देखना कि हाउ इज़ कार असेंबल्ड, तो उसमें आप देखोगे कि इट्स एवरीवेयर लेबर्स आर नॉट इन्वॉल्व. जो ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार को असेंबल करने के लिए. ठीक है, हैंस दे हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ दिस ऑटोमोबाइल मेकिंग. देन इज़ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट. अगर न्यू फर्म्स मार्केट में आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द मार्केट सप्लाई. एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं, जो नई काम कर रहे हैं, वो चले जाएंगे अगर, तो मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी. मतलब इफ़ प्रोड्यूसर्स, अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएंगे तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगा. अगर सब प्रोड्यूसर्स कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ फ्यूचर प्राइजेज में. अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइस में राइज होगा, फ्यूचर में प्राइस में राइज होगा, तो मैं अभी उसको सस्ते प्राइस पर क्यों बेचूंगा. व्हाट विल आई डू, आई विल होल्ड द गुड्स, आई विल सेव द गुड्स, और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कर देंगे उन गुड्स की, और उसका जो करंट सप्लाई है वो कम कर देंगे. वाई, बिकॉज जब फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा तब हम उसको सेल करेंगे. तो इफ़ द प्रोड्यूसर इज़ एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइस राइज, जो सप्लाई है, करंट सप्लाई है, दैट विल बी लो. और अगर वो फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, तो हम अभी करंट प्राइस पर जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देंगे. ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज टैक्सेस एंड सब्सिडीज़. अगर एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, सेल्स टैक्स हैं, जो फर्म की प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं. अगर टैक्सेस हाई हैं, प्रॉफिट विल बी लेस एंड द सप्लाई विल ऑल्सो बी लेस. एंड अगर सब्सिडीज़ हैं मार्केट में, इंस्टेड ऑफ टैक्सेस, इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अस सब्सिडीज़, तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी लेस, प्रॉफिट विल बी मोर एंड सप्लाई विल ऑल्सो बी मोर. ठीक, एंड कॉन्वर्सली इफ फिजिकल सब्सिडीज़ आर देयर, लोअर एक्सपेंसेस आर देयर, प्रोड्यूसर क्या होगा, वो इनकरेज हो जाएगा मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट इज़ द नेचुरल फैक्टर्स.
नेचुरल फैक्टर्स टेल कि अगर मतलब नेचुरल फैक्टर्स, अगर फेवरेबल मॉनसून कंडीशंस हैं या फर्टाइल सॉइल है, इट विल बूस्ट द क्रॉप सप्लाई. अगर अनएक्सपेक्टेड ड्रॉट्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, पेस्ट का इन्फेस्टेशन हो जाता है, मतलब अनवांटेड पेस्ट्स कम एंड दे रुइन द क्रॉप्स, तो उससे सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो जाता है. अगर फेवरेबल मॉनसून कंडीशन है तो देयर विल बी मोर सप्लाई. अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वेदर की तो फिर इट विल बी लेस सप्लाई. देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगेन efficient transportation infrastructure is there, तो the supply will be more, supply lines will be increased. और अगर disrupted transport and communication is there, तो hence supply will be less. Okay, next is supply schedule and supply curves, the next topic that we will study. Okay, so we were studying, ये हमने अभी आपको समझाया भी था, ठीक है. जैसे प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5 and 6, and the quantity supplied is also increasing from 20, 40, 60, 80 and 100. तो यहाँ पर you can see the plotting has been done, and here also you can see the plotting has been done, and this is how your supply SS curve will be made. Supply, that is in rupees term, not in F per unit, rupees per unit, ठीक. एंड दिस इज़ द सप्लाई. तो यू कैन सी यहाँ पर कि ये जो कर्व है वो ऐसे बनता है. हमने क्या किया, हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को बस यहाँ पर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 और 20, 40, 60, 80 एंड 100. तो हमने क्या किया, 2 पर, मतलब मिनिमम पर इट वाज 20, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पर इट वाज 20, 40, 60, 80 एंड 100. तो 3 पर इट इज़ 40, 4 पर इट इज़ वेरी ईजी 60, 5 पर इट इज़ 80, सॉरी फॉर दिस टेढ़ा मेढ़ा कर्व, एंड 6 पर इट इज़ 100, ठीक. So what is going to happen? This is how you are going to make the curve in a straight line that denotes a direct relationship. But what you will do is कि whenever in exams you are going to do this, you will always be attempting it with pencil. काउंसिल आपसे कहता है कि जब आप कर्व बनाओगे तो वो हमेशा पेंसिल से बनाओगे. बाकी चीज़ें you can explain it with pen, but always a diagram should be made with pencil, ठीक. and the scale should also be used. So that was individual. Moving towards the market supply schedule, that is market supply is derived by horizontally summing the supply of all the individual firms in the economy, assuming a simplified market with 2 suppliers. यहाँ पर हम क्या assume कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, but only 2 suppliers we will take. तो प्राइस 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. तो दिस इज़ फर्म ए, ओके, दिस इज़ फर्म ए एंड दिस इज़ फर्म बी. तो 2, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक. तो वी हैव टेकन आउट द मार्केट सप्लाई दैट इज़ 30, 50, 70, 90 एंड 110. और इसी को ही बस यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर देंगे इन अ हॉरिजॉन्टल मार्केट सप्लाई, एंड हेंस द समेशन विल बी लाइक दिस, ठीक. ये फर्म ए का है, ये फर्म बी का है, एंड दिस इज़ द मार्केट सप्लाई कर्व जो सबका है. बस आपको वही प्लॉटिंग करके इसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन यू कैन स्टडी बाय योर ओन. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल मूव टूवर्ड्स इज द law of supply. The law of supply says or states that other things remaining same, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, सेम चीज़ वी स्टडी हियर, दैट लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, देयर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी. उनके कहने का मतलब ये है दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप, आई टोल्ड ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक. तो यही जो की टर्म है, यही आपको यहाँ पर याद रखना होता है, दैट एज द प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो बी
increasing and as the price decreases the quantity supplied will fall. तो क्या बोला गया है, that the supply as the price will rise, the supply will rise, as the price will fall the supply will also fall. Hence this is known as law of supply. ठीक है, law of supply. And why is it so? ऐसा क्यों होता है? Because here the producer is actually asking for more of supply in the market. ठीक है, मोर ऑफ प्रॉफिट्स इन द मार्केट. अब हम इसके कुछ एजम्पशंस पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के. सबसे पहला इज देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नेक्स्ट मतलब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये वो अजम्पशंस हैं जो हमेशा फिक्स रहेंगे. तो फर्स्ट इज देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सेकेंड, देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. थर्ड, देयर इज़ नो चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म. Next, there is no change in the prices of the factors of production. And next, there is no expectation of change in the prices of near future. ये वो सारे assumptions हैं जो आपने पढ़े थे. लॉ ऑफ सप्लाई आपसे सिर्फ ये कहता है कि हम सिर्फ एक फैक्टर को वेरिएबल रखेंगे, दैट इज़ द प्राइस, एंड ऑल अदर फैक्टर्स जो अभी मैंने आपको समझाए थे ना, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गोल्स ऑफ फर्म, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्रोड्यूसर उधर भाग जाएगा. हेंस तो ऑल दीज फैक्टर्स विल रिमेन सेम. तभी अगर प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई फॉल होगी. ओके, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है. अगेन द सेम काइंड ऑफ कर्व हैज़ बीन मेड जस्ट टू एक्सप्लेन यू द रीज़न कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 10, 20, 30, 40 एंड 50, द क्वांटिटी विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग फ्रॉम 100 से 500. तो दिस इज़, अगर कभी भी लॉ ऑफ सप्लाई आता है तो यू हैव टू मेक दिस कर्व. स्पेशली पूछा जाता है. ठीक, तो सप्लाई शेड्यूल, हाइपोथेटिकल सप्लाई शेड्यूल, एंड दिस इज़ द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट यू आर सपोज टू मेक, जो हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई का कंसिडर किया जाता है. तो हाउ इट इज़ मेड, बस ये आपने लिया प्राइस, दिस इज़ ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक, दिस इज़ प्राइस, this is original quantity, and when the price of the commodity will be higher, the supply will also be higher. So it will be changing from P to P1, it will change from Q to Q1. This is X, this is Y, this is O. So this will be a straight line. Okay, this is how the law of supply is going to move. Then core explanations and rationales behind the operation. क्यों हम कहते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा होता है, क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है. सबसे पहले इज लेवल ऑफ प्रॉफिट. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि प्रोड्यूसर ये कंसिडर करता है कि प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम है, प्राइस प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा है. ठीक, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाती है. देन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. ऑब्वियसली अगर प्राइजेस किसी भी कमोडिटी के ज़्यादा होंगे तो वो एक प्रोड्यूसर को एक इंसेंटिव के जैसे वर्क करता है कि नई फर्म्स भी मार्केट में आ जाती हैं. एंड देन चेंजेस इन द स्टॉक. इफ़ द changes in the stock are there, the price rises, sellers are induced to release goods from their accumulated stock. जो उन्होंने स्टॉक बना के रखा है उसमें से वो कुछ गुड्स को मार्केट में और भेज देते हैं. Hence the price, the supply also increases. ओके, नेक्स्ट इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. वो कौन से कंडीशंस होते हैं जिस पे लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है. वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, कोर्स में ये वाला टॉपिक नहीं है, बट जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप 2 मिनट के लिए अगर समझ लोगे उसे, इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स. जो भी अगर एग्रीकल्चरल गुड्स ऑब्वियसली रेनफॉल फेल हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उनको हम प्राइजेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, भले ही सप्लाई को एक्सपैंड नहीं कर सकते, भले ही उसका प्राइस कितना भी राइज हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आप इन अ डे ना टमाटोज उगा सकते हो ना बनानाज उगा सकते हो. ठीक, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वॉट एवर इज़ द प्रिवेलिंग प्राइस, यू हैव टू सेल देम ऑफ. भले प्राइस जो है वो फॉल हो जाए ड्रास्टिकली, बिकॉज आपका जो सामान है वो ख़राब हो जाएगा. नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ ऑक्शन और रेयर पेंटिंग. सपोज मोनालिसा पेंटिंग, इट हैज़ अ फिक्स्ड एब्सोल्यूट कैपेसिटी. आप उससे ज़्यादा सडनली उस चीज़ को नहीं इंक्रीज़ कर सकते, बिडिंग प्राइस कितना भी हाई हो जाए, लेकिन आप न्यू मोनालिसा पेंटिंग यू कैन नॉट क्रिएट.
नेक्स्ट इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, देखो इसका बस मतलब आपसे ये कहता है कि कभी भी अगर हम एक लेबर की बात करें तो वो हमेशा टाइम के साथ अपने जो वेजेस होती हैं, वेजेस के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, एक समय बाद वो क्या करता है, वो वापस से उसको कम करने लगता है। दैट इज़ नोन एज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। इसको ऐसे तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम्पल, 12th का ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले वो वेजेस को प्रेफर करता है, बाद में जब उसे लगता है कि अच्छा अब वेजेस नहीं, मुझे आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा तो मुझे मिल ही रहा है, ठीक, हैंस वो क्या करता है, वो वेजेस को, भले ही उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा हो तो ज़्यादा पैसे में उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी सप्लाई है वो कम हो जाती है, मतलब उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज ही नोज़ कि हाँ मुझे ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, भले ही मैं काम करूँ या ना करूँ। Okay, so this is backward bending supply of labor, and that is also an exception to the law of supply. I hope this much is clear to you. Next we will do the movement along the curve, जिसमें हम expansion, contraction, increase और decrease समझेंगे। तो I hope this much is clear to you all. Rest we'll do in the next video. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.